Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we have already started the lesson number 10, disaster management, and we have seen the headlines of in the newspapers. Yes, related to the disaster management. Then we have seen about the famine. Okay, what are the famine? Now, yes, we have to see now. Yes, so the past we have seen, not to see. Yes, we have already seen. Yes, what happens in the past means that the effect of the famine in the certain region, and how the Shivaji Maharaj overcome the yes famine in his tenure. Now yes, we have to see the next part. Are we responsible for famine or not, कि हम लोग responsible है famine के लिए कि नहीं है. तो yes, let's see one by one. तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो यस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइन. हम लोग भी क्या है फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट. वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन द रेनफॉल एंड पॉपुलेशन is disturbed. Now yes, day to day the human populations are increasing with very fast rate, and because of this fast rate and decrease in the rainfall, there is a yes water shortage or water crisis. Second, though there has been a very high rise in the production of the food grain as a result of the green revolution, the balance of environment has been lost due to the chemical fertilizer, pesticide and weedicides. Okay, now yes, because of the green revolution the food crop production increased, but yes, what happens? Yes, because of the use of the excessive amount of the fertilizer, pesticide, weedicide, the fertility of the soil is decreased. Unlimited lifting of the water. Now, yes, for the food crop, the for irrigation purpose, the yes, the underground water are lifted. That's why there is a yes, there is the decrease in the level of the water. Now, yes, fourth one, erosion of the land. Yes, because yes, more and more land is brought into under the cultivation. ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन क्या है ये उसको किसके अंडर लाया गया, कल्टीवेशन के. एंड बिकॉज ऑफ दिस इसकी वजह से क्या है, yes that land which are brought under the cultivations, yes their soil become loose, and because of the wind as well as the water, the the fertile soil of the upper layer is washed away or flown by the air, and because of this the erosion of soil taken place. Now misuse of the water. Now yes, misuse of the water. Okay, means not its proper use. So because of the misuse of the water also the now next देखो, what can we do to ease the severity of famine. हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्या है फेमाइन की जो सिविरिटी है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट है उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट वन, प्लांट यूजेस ऑफ द वाटर एंड रीयूज ऑफ द वाटर. नाउ यस, प्लांट यूजेस ऑफ द वाटर कि वाटर कैसे यूज करना, दैट वी हैव टू प्लान, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए. एंड रीयूज ऑफ द वाटर, और जो हमने एक बार उस वाटर को इस्तेमाल किया तो उसका रीयूज कैसे किया जाए, दैट शुड बी प्लान. अगर ऐसा हमने प्लान किया तो क्या होगा, इस वाटर की जो स्कार्सिटी है, कमी जो है वो क्या हो सकती है, सर्टेन एक्सटेंट तक सॉल्व हो सकती है, सॉल्व. ओके, फॉर एग्जांपल द वाटर which are used for washing the clothes and for yes bathing, that water can be cleaned, and then after cleaning that waters are used in the gardens. जो gardens में उस water का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. Now second one, proper planning of the water conservation and harvesting at the local level. Now yes, at each and every levels means from the yes village level there should be proper planning of the harvesting of the rainwater. Rainwater की harvest के लिए क्या होना चाहिए, planning होना चाहिए. Large scale plantation of trees and prevention of deforestation.
नाउ लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्री एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम लोगों को क्या है, इस वाटर की प्रॉब्लम एंड जो फेमिन की सेवेरिटी को कम करने के लिए है, ये प्लांटेशन लार्ज स्केल पे करना चाहिए, मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जो कटिंग ऑफ ट्रीज है कॉल्ड एज द डिफॉरेस्टेशन, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। फोर्थ, मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन द प्लान्स। हम लोगों को जो भी हमारे प्लांट्स ऑलरेडी बने हैं वाटर स्टोरेज के या क्या है, ये जो ट्रीटमेंट के, ये उसमें भी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लानिंग होनी चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर फॉरकास्ट। और उसको हमको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, वेदर फॉरकास्ट के, ये जो भविष्यवाणी की जाती, जो क्या है, ये इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, उसके बेस पे हम लोगों को उसका प्लानिंग और अच्छे से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्या है, ये वेदर फॉरकास्ट interpreted or yes declared that yes this year there is a shortage of the रेन की शॉर्टेज होगी, देन तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, और केयरफुली उस वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्लान में हम लोगों को चेंजेस करना चाहिए। लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नो फेमाइन, नो लैंड इरोजन। कंपोज ए वैरायटी ऑफ सच स्लोगन्स एंड यूज देम ड्यूरिंग द एनवायरमेंट अवेयरनेस रैलीज। जब भी एनवायरमेंट ये क्या है, अवेयरनेस रैलीज निकलती है, तो इस तरह के स्लोगन प्रिपेयर करके कार्डबोर्ड पे लिख कर और हम लोगों को मैसेज कॉन्वे करना चाहिए, मैसेज स्प्रेड करना चाहिए। Now yes, cloud burst. Second, now yes, we have seen the first one famine and second one is the cloud burst. This is the second, yes, natural calamities. What causes the rain? What causes the rain? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज द रेन, रेन किसकी वजह से होता है, वो पूछा है क्वेश्चन। नाउ ये से समटाइम्स द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन क्लाउड डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ द रेन। समटाइम वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन क्लाउड does not reach the land in the form of the rain, instead due to very high temperature near the land it vaporizes and go back into the same cloud. As a result, amount of vapor in those clouds become very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at rate of the 100 mm per hour or more. This is known as the cloud burst. अब ये क्लाउड बस्ट किस तरह से होता है, समटाइम ऐसा होता है कि जो क्या है, ये जो रेन के जो क्लाउड्स होते हैं उनसे क्या है, रेन लैंड की तरफ आता है, बट क्या हो जाता है, ये लैंड पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो आने वाला वाटर है वो वेपर बन के वापस से क्या है, ये उस क्लाउड में चले जाता है। एंड वहाँ पे जाने के बाद में क्या है, ये वो जो वेपर है वो कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन मतलब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद में वही कंडेंस जो वाटर है वो सडनली एक इस छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ही स्पीडली ज़मीन पे आता है, और वो जो रेट होता है 100 mm पर आवर और मोर, 100 mm और उससे ज़्यादा की बारिश उस कम समय में 1 घंटे में होती है। दिस इज कॉल्ड एज द क्लाउड बस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट। मीन्स कि क्या है, यस वेरी हैवी, यस हैवी रेन, बहुत ही हैवी रेन दैट टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही कम टाइम में यस क्या है वो होता है, और वो इतना फास्ट रेट होता है कि 100 mm यस क्या है पर आवर्स, इससे ज़्यादा या इतनी यस mm की बारिश एक ही घंटे में हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। Now yes, do you know a cloud burst occurred at the Leh on 6th October 2010. The cloud burst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and unforgettable. जो मुंबई में ये 26 अगस्त 2005 में जो क्लाउड बस्ट हुआ था वो भी क्या है, ये अनफॉरगेटेबल है, उसको हम लोग भूल नहीं सकते। ऑन दैट डे इट रेन्ड अबाउट 950 mm, that is 37 inches in 8 to 10 hours.
तो 8 से 10 घंटे में 950 की बारिश हुई थी। एंड एंटायर सिटी ऑफ मुंबई वॉज वाटर लॉग एंड फ्लडेड, और पूरी की पूरी मुंबई जो है यस वो क्या है, यस वाटर लॉग्ड हो गया। वाटर लॉग्ड होना मतलब पानी जमा हो गया, एंड फ्लडेड और क्या हो गया, फ्लड जैसा सिचुएशन आ गया। नाउ यस थर्ड नेचुरल कैलामिटीज फ्लड और नेचुरल डिजास्टर फ्लड। फ्लड क्या है, यस व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्लड, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फ्लड। तो व्हेन द रेन वाटर्स comes out from the river because of the yes filling of the river because of heavy rain and spreading nearby the area of the river is called as the flood। तो जब क्या होता है, ये जो रेन वाटर जब हैविली व्हेन रेन हैविली जब क्या है बारिश बहुत तेजी से होती, दैट टाइम द वाटर नॉट एडजस्टेड इन द फ्लोइंग रिवर एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द रिवर। तो क्या होगा, दैट वो फ्लोइंग वाटर जो है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, उस रिवर से बाहर आ जाता है, एंड दैट स्प्रेड द एरिया नियर बाई ऑफ रिवर एंड लो लाइंग एरिया, जहाँ पे क्या होता है ये ज़मीन नीची होती है उस एरिया में वो फैल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फ्लड। एंड दिस फ्लड कॉज द सीवियर प्रॉब्लम्स for the human being because yes the crop plants are totally is synced in that, and sometimes the houses are damaged and animals human beings are flown by that river yes rain that waters, and because of there is a loss of the lives takes place. We have already learnt about the flood and the effect of the flood. Collect more information about the flood that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years. Now protective measures in view of the flood। प्रोटेक्टिव मेजर इन व्यू ऑफ द फ्लड। फ्लड के व्यू में क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब उपाय हम लोग ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल डैम इन द माउंटेन्स रीजन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटा डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जब हैवी रेनफॉल होगी तो क्या होगी, ये वो वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डैम से स्लोली स्लोली इस क्या है स्लोली स्लोली हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को रिलीज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द परकोलेशन टैंक। कंस्ट्रक्शन ऑफ द परकोलेशन टैंक, हम लोगों को क्या करना चाहिए, परकोलेशन टैंक्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, रिवर बेड के जो क्या है ये रिवर बेड को फ्लैट करना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट लगाना चाहिए। कनेक्टिंग रिवर्स, रिवर को एक दूसरे से क्या करना चाहिए, लिंक कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे ना, जब तक मैं अपने बाजू में बैठ के पढ़ा हाँ 3 बजे से, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना भाई, थोड़ा ओरल का वो तैयारी करे अपना। भाई बोले कि मैं तो बाहर था, मैं बोला चलो कुछ नाश्ता वास्ता करा दो उसको, नहीं किया तो। Second, construction of the percolation tank. Third, making river beds flat. Cultivation of the new forest. Connecting rivers. So these are the measures to prevent the flood, the from the losses of the flood. Now, Government of India established the National Flood
commissioned in 1976. So you have to remember this year when the National Flood Commission is established in 1976. The commission has made special effort towards the control of the flood. A plan regarding the flood control is kept ready for national level to village level. A plan regarding flood control is kept for the national level to village level. Large scale damage of the property and loss of the life can be avoided because of this plan. Okay, yes, because of this planning, the life and yes, loss of the property can be minimized. Now yes, third one is the lightning, next one is the lightning. Okay, lightning we have learned yes in detail in the previous lesson about the lightning. So this lightning is also a yes a disaster, natural disaster. You have learned about the generation of the electric charge and lightning strike in the lesson on static electricity. In this lesson, we shall learn some things more about the lightning and the measures for protection from it. So now here in this lesson, we have to especially learn the protective measures from the lightning. Yes, the wonderful things to know about the lightning. Lightning temperature more intense than the sun. Okay. Not all lightning strike the ground means जितने भी lightnings होते सब के सब क्या है ground को hit नहीं करते. In fact, about 95% of the lightning flashes are limited to the sky. 95% जो lightning होती है वो सिर्फ और सिर्फ sky में उसकी flashes दिखाई देते means that do not reaches to the yes ground. So that's why each and every lightning do not yes harm to the yes human beings or the life of the living things. The only 5% of the lightning reaches the ground. Lightning can be generated within one cloud. The lightning can be generated within one cloud, between the two clouds, or between a cloud and the ground. About 40 lightning flashes occur per second in the atmosphere. The temperature generated by lightning is higher than that of the sun. Due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly and a loud crashing sound is heard. Do you know? Lightning strike open ground maximum time. The world's mortality rate due to the lightning is very low. However, survivors of the lightning strike suffer long term effect. जो क्या है ये lightning strikes से जो affected persons होते हैं उनको उसका जो इफेक्ट रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है. इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ. A study of places struck with the lightning show that it happens more on open ground than under tree or near water. अब जितने भी स्ट्राइक हुए हैं ये लाइटनिंग के उससे ये शो होता है कि क्या है ये जनरली लाइट lightning strike opens yes strike the yes open ground. ये जनरली क्या होता है ओपन ग्राउंड में ही होता है एंड अंडर द ट्री ये कम होता है. Mishaps have occurred most often when person is at a high place or near a tall object. अब जो क्या है ये जो मिसहैप्स जो क्या है ये इंसिडेंट जो होता है जो इंजर करता पर्सन को जब वो क्या है ये जनरली वो एक कोई टॉप प्लेसेस पे रहता है या हाइट वाले ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट रहता है वैसी चीज़ों को ये ज़्यादा ये क्या है हार्म पहुंचाता है. व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म के टाइम कौन सा प्रिकॉशंस आप लेंगे. फर्स्ट वन
डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो ए ट्री। तो ये ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म यू डो नॉट यस स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में और ट्री के नीचे आपको खड़े नहीं रहना है। डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब ए ट्री, डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब ए ट्री, आपको किसी हाई लोकेशन पे मतलब जो हाइट पे है वैसे जगह पे नहीं जाना है, और डू नॉट क्लाइंब ए ट्री और ट्री पे चढ़ना नहीं है। डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, ए टेलीफोन पोल, ए टावर एक्सेट्रा, आपको इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन के पोल्स और जो टावर्स है उसके नीचे नहीं खड़ा रहना है। डू नॉट लीन ऑन वायर्ड फेंस अराउंड ए फार्म, ए कंपाउंड, ए गार्डन और ए हाउस, डो नॉट लीन ऑन द वायर्ड फेंस। अब जो क्या है, ये जो फार्म हाउस होता है या फार्म होता है, फील्ड होता है, या किसी बिल्डिंग का कंपाउंड है या गार्डन है, तो जो क्या है ये उसके अराउंड जो फेंसिंग की रहती है, आयरन के बने हुए, जैसे क्या है ये जो थॉर्नी फेंसिंग होती है, कांटेदार जो फेंसिंग होती है, यस उस पे यस लटकना नहीं है, उसके नज़दीक नहीं खड़े रहना है। इफ़ यू आर ऑन टू व्हीलर, ए बाईसाइकिल, ए ट्रैक्टर और ए बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू द सेफ प्लेस। अगर आप क्या है ये टू व्हीलर चला रहे हो या बाईसाइकिल, टू व्हीलर मीन्स बाईसाइकिल और साइकिल, या ट्रैक्टर या बोट पे हो, नाव पे हो या ट्रैक्टर पे हो, तो इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, इस उस व्हीकल को साइड में लगाकर और सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। डू नॉट गेदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, डू नॉट गेदर, डू नॉट गेदर मीन्स एक जगह क्या है इकट्ठा नहीं होना है किसी एक प्लेस पे। टेक केयर टू कीप ए डिस्टेंस ऑफ द 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन्स, एंड यू हैव टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द 15 फीट बिटवीन द टू पर्सन्स। तो जहाँ भी आप क्या है प्रेजेंट हो वहाँ पे 15 फीट का डिस्टेंस एक दूसरे से रखना चाहिए। डू नॉट यूज़ प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, डू नॉट यूज़ प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जो क्या है ये प्लग उनका कनेक्टेड है या क्या है ये स्विच ऑन है, तो उसको हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए उस टाइम। डू नॉट यूज़ ए मोबाइल और टेलीफोन, और उस टाइम मोबाइल और टेलीफोन का भी यूज करना नहीं चाहिए। एट नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंड ऑन द ड्राई वुड, ए प्लास्टिक शीट, सैक और जूट क्लॉथ और ड्राई लीफ। जहाँ हम खड़े होते वो क्या होना चाहिए, या तो वहाँ पे ड्राई वुड पे, या तो प्लास्टिक के शीट पे, या तो सैक, सैक मतलब गोनी या बोरा, और जूट क्लॉथ से बने हुए इस मटेरियल या तो ड्राई लीफ पे हम लोगों को खड़े रहना चाहिए। कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नी एंड क्रॉच लो। अब जहाँ पे भी हम खड़े रहते तो किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, ये दोनों फीट को साथ में रख के और सोल से सपोर्ट करके खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्विमिंग और फिशरमैन शुड, स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर। और जो भी ये क्या है स्विमिंग के लिए गए और जो क्या है ये फिशिंग, जो फिशिंग के लिए जो पर्सन गया है वो या फिशरमैन है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, इमीडिएटली यस वो बोट से उतरकर यस ज़मीन पे आना चाहिए। ए पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस, पक्का हाउस मीन्स जो क्या है ये कंक्रीट और क्या है उससे बना है, और न्यू कंस्ट्रक्शन वाला जो हाउस है वो क्या है उनके लिए सेफ होता है। फाइंड आउट इफ देयर इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर और एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस, इफ़ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस, अगर ज़रूरत हो तो क्या है इस लाइटनिंग कंडक्टर अपने घर पे भी इंस्टॉल करना चाहिए। नाउ ये वोल्केनोज, नेक्स्ट वन इज द वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो मीन्स बहुत ज्वालामुखी। ओके, यस वी नो दैट यस इन द यस ऑन द अर्थ देयर आर द यस लाइव वोल्केनो, क्या है ये सभी भी क्या है कुछ क्या है ये लाइव वोल्केनोज है, जहाँ से इस तरह से एसेस गैसेस एंड जो क्या है ये
मोल्टेड क्या है, लावा बाहर आते रहता है। एंड सम आर इन द स्लेप फॉर्म, कुछ ऐसे हैं जो क्या है ये सोए हुए फॉर्म में है। वोल्केनो, ए वोल्केनो इज द नेचुरल इवेंट और फेनोमेनन, जो क्या है ये वोल्केनो जो है वो क्या है, नेचुरल इवेंट है, फेनोमेनन है। और उसके बाद में जो लिस्ट है ना, लिस्ट उसमें कुछ ऑक्टेव नंबर ऐड करना है। The interior of earth is very hot. We know that at the center of the yes earth, जो अर्थ का सेंटर है, इट इज़ वेरी हॉट, वो बहुत ही गर्म है। मतलब जब हम क्या है अर्थ सरफेस से जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सरफ ये सेंटर में जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, ये जो हीट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है उसके अंदर। मूवमेंट ऑफ द हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली अकर फ्रॉम द इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो क्या है ये जो हॉट सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ जाते हैं। एज रिजल्ट समटाइम द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस बिलो द अर्थ क्रस्ट आर पुश टुवर्ड द क्रस्ट। तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये हॉट होकर लाइट इन वेट हो जाते हैं, लाइट इन वेट होकर क्या हो जाते हैं, ये जो अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन के अंदर की जो क्या है ये जो चट्टाने हैं उस तरफ वो मूव होते हैं। एंड वेयर देयर आर द वीक रॉक्स, जहाँ पे वीक रॉक होते हैं, जहाँ पे कमज़ोर चट्टाने होती है, उसको ब्रेक करके वो क्या है ये अर्थ पे आ जाते हैं। और जब ये अर्थ पे आते दैट टाइम क्या है ये मोल्टेड जो क्या होता है ये वो रॉक्स होता है, और उसके साथ में क्या हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स सब बाहर आ जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज द वोल्केनो। When these substances come out of the earth crust in an eruption and start flowing is called volcano। तो यही जो हॉट मटेरियल होता है जो अर्थ के यस इनर क्रस्ट में जो प्रेजेंट रहता है, और जब क्या है उस रॉक को ब्रेक करके अर्थ पे जब आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए वोल्केनो, वोल्केनो की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। यस द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज लावा, chemical substances such as lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created। अब देखो जो केमिकल सब्सटेंस है जैसे कि लावा है, वेपर है, मतलब वेपर किसका होगा, ये सिस्टम का होगा वेपर, और हॉट मड और गरम जो है ये कीचड़ जैसा मटेरियल, सल्फर एंड अदर गैसेस दे गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो वो क्या है सरफेस अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाते, वो जमा हो जाते और कूल डाउन हो जाते बाद में, और ठंडा हो जाते ये एयर के कांटेक्ट में आने से। देयर बाय माउंटेन एंड हिल्स आर क्रिएटेड, और इसी की वजह से क्या है माउंटेन और हिल्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो हम लोगों को हिल्स और माउंटेन दिखाई देते हैं, ये हिल्स और माउंटेन भी ये किसी ज़माने में ये वोल्केनो की वजह से ही बने हुए हैं। The atmosphere get collected polluted due to the ash and the gas ejected by the volcano। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, स्पेशली ये एटमॉस्फेयर जो है ये एयर पॉल्यूशन उसमें होता है, क्योंकि जो कि ऐसेस होते जो हार्मफुल गैसेस होते वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और सम पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं एयर में। ऑफन इट रिमेन often it rain as a result of the volcanic eruption, sometimes not usual, but sometimes what happens, yes there is a rain also when there is a yes volcano, जब volcanic eruption takes place that time yes rains also takes place। the temperature rises due to the hot gases, और टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है वो क्या हो जाता है, ये सम इस एक्सटेंट तक राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हॉट गैसेस। Forest and settlement get buried under the hot mud. Sometimes when this eruption takes place in the yes human being settlement, human being settlement means human being की बस्ती लोकेलिटी जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर ऐसी बस्ती में अगर इस तरह का वोल्केनो के eruptions होता है दैट टाइम जो ह्यूमन बीइंग का सेटलमेंट होता है वो बरीड हो जाता है उस मड के अंदर, उस लावे के अंदर, उसी में क्या हो जाता है दफन हो जाता है। अगर वो फॉरेस्ट में हुआ तो क्या होगा,
ट्रीज और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, उसके अंदर बरीड हो जाते, दफन हो जाते। Volcanic erupt, yes, volcanoes erupt in the sea एज दे डू ऑन द लैंड। तो जिस तरह से ज़मीन में वोल्केनिक इरप्शन होता है, वैसा ही वोल्केनिक इरप्शन क्या हो सकता है, सी के अंदर भी होता है, इस रिवर के अंदर भी हो सकता है। द सेम सब्सटेंसेस दैट कम्स आउट ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ ए वोल्केनो ऑन द लैंड आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ ए वोल्केनो इन द सी। तो जिस तरह से ये क्या है, ये ज़मीन पे होने वाले, इस लैंड पे होने वाले ये वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, दैट मटेरियल गेट कलेक्टेड इन सिमिलर वे। क्या होगा, इफ द eruption takes place in the ocean, that yes, mud and other material get collected in the ocean and cool down. Some islands are created due to the eruption of the volcano in the sea। तो इस तरह से समुद्र के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं। जैसे कि क्या है, ये हम लोगों ने बहुत सारे आइलैंड के बारे में ये क्या है पढ़ा है। जैसे कि श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो भी एरिया जो है ये क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। ऐसी ज़मीन जो क्या है कम्प्लीटली चारों साइड से किससे घिरी होती है, पानी से, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। ओके, और हिंदी में क्या बोलते हैं, टापू। तो जैसे हम लोग एलिफेंटा क्या है, ये एक स्मॉल आइलैंड है, अंडमान निकोबार। ओके, ये क्या है, ये एक आइलैंड है जो कम्प्लीटली क्या है, चारों साइड से वाटर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस इन द सी, ओशन, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आइलैंड का फॉर्मेशन भी होता है। It is not possible to prevent the eruption of the volcano, to stop it after it erupts, or to control it. Now yes, जैसे हम लोग दूसरे केस क्या है, ये जो कैलामिटीज़ है या दूसरे जो डिजास्टर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या है, ये वोल्केनिक इरप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। However, by means of the science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate step for disaster management. But because of the advancement in the science and technology, yes, we can get information pre to the yes volcanic eruptions, and yes, by immediate actions, yes, the loss can be minimized to certain extent. Now yes, next disaster is tsunami. अब किसके बारे में देखना है, ये सुनामी के बारे में। As on land, earthquake and volcanic eruptions occur at the bottom of the sea too। अब क्या, जैसे जमीन पे क्या होता है, ये वोल्केनिक इरप्शंस जब ये समुद्र के अंदर होता है। इट इज एन अर्थक्वेक ऑकर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। अगर क्या है, ओशन के बॉटम में अगर अर्थक्वेक होता है, द एनर्जी रिलीज पुशेस द वाटर अपवर्ड। तो जो क्या है, अर्थक्वेक के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस क्या है, वाटर को ऊपर की तरफ पुशअप करता है। एज रिजल्ट ऑफ दिस पेक्यूलियर टाइप ऑफ द वेव्स आर फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की जो है वेव्स, और जो क्या है वेरी यस हाई वेव्स होती है, बहुत ऊंची जो क्या है वेव फॉर्मेशन होता है। एज रिजल्ट ऑफ दिस पेक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म। दिस वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्स। तो ये वेव क्या होते हैं, ये बहुत हाई सिर्फ सोर्स के नज़दीक नहीं होते, बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट टू द लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो जहाँ पे क्रिएट होता है सिर्फ वो ये वेव वहीं तक रुकती नहीं है, बल्कि क्या है, वेरी क्विकली इट स्प्रेड एट द लॉन्गर डिस्टेंस, दूर तक ये क्या हो जाते, फैल जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इज 800 to 900 किलोमीटर पर आवर्स। अब इनकी वेलोसिटी वेव्स की क्या होती है, 800 से 900 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। व्हेन दे रीचेस ए कोस्टल एरिया, जब वो क्या है, ये कोस्टल एरिया पे पहुंचते हैं, ओके, समुद्र के नज़दीक तट पे जब वो पहुंच जाते, दे यस देयर वेलोसिटी इज रिड्यूस। तो उनकी वेलोसिटी क्या होती, रिड्यूस होती, बट देयर हाइट इज फाउंड टू हैव द इंक्रीज ट्रिमेंडसली इवन टू अबाउट 30 मीटर।
लेकिन उनकी हाइट फिर भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये लगभग क्या है 30 मीटर्स की होती है। सच अ वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक और वोल्केनो ऑकरिंग ऑन द ओशन फ्लोर इज कॉल्ड एज सुनामी। तो इस तरह से जो वेव का क्या है ये क्रिएशन है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड एज द सुनामी। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। यस, ये सुनामी जो है ये जापान का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हार्बर वेव। ऐसा वेव जो क्या है ये जो बंदरगाह पे होता है, ये जो क्या है ये बीच के नज़दीक होता है, ऐसा वेव। Now yes student, unmute yourself and if you have any doubt ask to me. Yes, is anybody having any doubts? Etisham, Lakshman, Madiha, Sheikh Affan, Sharmin, is anybody having any doubts? Now next point is the destructive effect of tsunami. Now destructive destructions कौन कौन से होते हैं सुनामी का, वो देखना है हम लोगों को कि सुनामी से होने वाले डिस्ट्रक्शंस। Buildings and other constructions are destroyed. जो buildings and houses which are constructed near the beach or coastal area they get is destroyed. तो उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। There is a large scale loss of life and financial loss. और उसके साथ साथ में क्या होता है, लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा पैमाने पे बहुत ज़्यादा यस क्या है क्वांटिटी में यस ह्यूमन बीइंग एनिमल्स प्लांट लाइफ का लॉस होता है एंड फाइनेंशियल लॉस होता है बिकॉज ऑफ द कोलेप्सिंग ऑफ द बिल्डिंग हाउसेज ब्रिजेस समटाइम्स एट्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या है फाइनेंशियल लॉस। सेकेंड थर्ड, बोट्स एंड शिप्स नियर द बोट एंड शिप्स नियर द गोड एस कोस्ट गेट डैमेज। जो नज़दीक होते हैं समुद्र के नज़दीक जो बोट्स होते हैं, नाव होती है, और जो शिप्स होते हैं जो जहाज़ें होती है पानी वाली, वो भी क्या हो जाती है, उनका भी नुकसान होता है, उनका भी डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रीज गेट अप्रूटेड, लैंडस्लाइड्स टेक्स प्लेस ऑन द लार्ज स्केल। जो ट्रीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं समुद्र के किनारे वाले, वो अप्रूटेड होते हैं, जड़ के साथ उखड़ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स टेक्स प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, और जो ये समुद्र के किनारे जो हिल्स होते हैं उस हिल्स पे ये लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू द स्वैम्प्स। जो क्या होगा, ये जो लैंड होगा, जो ज़मीन होता है समुद्र के किनारे, उसमें ये बहुत ही लार्ज स्केल में भी चेंजेस होते हैं। ये ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस अराइजेस, ट्रैफिक क्या हो जाती है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब। जो इंडस्ट्रीज ये डायरेक्टली ये सी के ऊपर डिपेंड है लाइक फिशरीज, वो जो है ये वो भी क्या हो जाती है अफेक्टेड हो जाती है। लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू द हार्बर। जो बंदरगाह होते हार्बर होते जहाँ पे क्या की जाती है इस शिप्स पे लोडिंग की जाती, डी लोडिंग की जाती है, वहाँ पे भी क्या होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है। नाउ yes today I am ending the yes meeting, the remaining part we will see in the next lecture.